Mehman, Mirchi Mehman. Knock knock. Who's this? Welcome to MMM, which is Mirchi Mehman Monday with me, Mirchi Shammi, ladies and gentlemen. How about that? KKK sucks, but MMM is better. So, मेरे साथ मिर्ची मेहमान में जुड़ रही है एक और हस्ती इस हफ्ते, and his name is Ajai Sharma, recent grad from one of the finest institutions in America, the Culinary Institute of America, or as it's known internally, CIA. Ajay, welcome to the show. Welcome to Radio Mirchi USA. How are you today? Hi Shammi, thank you for having me on your show at Radio Mirchi USA. It's a total honor to be here. And as you had already given me such a big intro that I am a recent graduate. I graduated last Thursday, and it's a surreal feeling to be a part of such a big radio station. So जिन लोगों को नहीं पता अजय, Culinary Institute of America, how prestigious it is, कितना इसकी मान्यता है, कितना माना जाता है in the line of people who wanna become chefs, who wanna train to become chefs. So CIA की जो standing है आज की डेट में, that is known as the Oxford. The Culinary Institute of America, ladies and gentlemen, not the federal agency CIA. Yes, it's the other CIA. हाँ, तो आज हम पूरे context में जब भी CIA बोलेंगे, we are gonna be talking about the Culinary Institute of America. Yes, and not the actual CIA, which was my old job. Go ahead. So when we talk about the Culinary Institute of America, every person who loves food or who has been in the food industry knows CIA because it's known as the Oxford for the chefs. Oh, really? Yes. So anyone who wants to be a chef, it's a dream, dream college. So the level of education in this college is very fine. So it's like a full college. It's like a full college, yes. Okay, it's not like some restaurant कहीं बना दिया उसमें चार किताबें रख दी. Okay, it's not like that. And कितना लंबा program होता है ये? So what I studied was for 1 year 9 months, so roughly 21 months. But if someone wants to pursue bachelor's, it's as good as like 3.5 years. Oh wow. Yeah. तो सिखाते क्या है मतलब 21 month में आपको? So initially we start with the fundamental because fundamental is the main core of any foundation. So हमारे को we are taught how to cut the vegetables. I know लोगों को ये लगता है कि खाना बनाने में क्या आर्ट है, but for me cooking is an art. Of course it's an art. Of course. It's an art. It's a science too sometimes. It's a science because it's an art, but it's a science because रोटी इतनी क्यों नहीं फूलती एंड पूरी इतनी क्यों फूलती एंड हाउ डू दे मेंटेन दैट होल पफीनेस इन द पूरी. सो इट्स ऑल साइंस. बट एज यू आस्क्ड मी दैट व्हाट do they teach you? They teach you how to be the best in the industry. They give you a rough idea how the actual restaurant works in and out. So gotcha. The best in the industry. We will find out how good he is in our next segment when we come back on Mirchi Mehman on this fantastic Monday, April 18, 2022. Don't go anywhere. Mirchi Mehman continues when I come back on Radio Mirchi USA. On Radio Mirchi New York. It's hot. Mirchi Mehman, Mirchi Mehman, Mehman, Mirchi Mehman. Knock knock. Who's this? Mirchi Mehman Mondays on this Monday, April 18th with me, Mirchi Shammi, ladies and gentlemen. Mere aziz dost Ajai Sharma sitting across the table from me. Ajay, a chef extraordinaire. See, I know some French words. And from the Culinary Institute of America, recent grad. Ajay, welcome back to Radio Mirchi USA. Thank you, Shammi. Thank you so much. तो अजय मुझे एक बात बताओ, food is especially हमारे देसी culture में food has a very big position and बहुत सारे लोगों को खाना अच्छा लगता है. I understand that food is comfort, food is a safe space, food is passion. खाना बनाने की अर्ज कहाँ से आती है तुमको इतनी यंग एज में? मेरे को खाना बनाने की अर्ज आई मेरे जो घर में लेडीज हैं, माय मॉम, माय नानी, बुआ, बिकॉज वी लव फीडिंग पीपल एंड एवरीवन इन माय हाउस, माय मासी, माय बुआ, एनीवन यू गो टू, दे आर ऑल बिग टाइम फूड. नहीं तो आई अंडरस्टैंड, खाते तुमको भी बच्चे को भी पकड़ पकड़ के खिलाते होंगे, तो खाते खाते तुमको किचन में जाके बनाने की कैसे, लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू पीस दिस टुगेदर. सो अ बिग फूडी इज अ वेरी गुड has a very good palate, and then we are very I come from a very hospitable background, so I more than eating I love feeding because खाना खिलाना एक पुण्य का काम है. अच्छा. तो and it's a gesture of kindness कि हाँ you are feeding someone and then the smile comes and that comforts me. So
वो भी एक रीजन था कि व्हाई आई लव फीडिंग पीपल एंड दैट्स. तो सबसे पहली डिश क्या बनाई आपने? मैंने सबसे पहले डिश बनाई थी क्लब सैंडविच, बेसिक क्लब सैंडविच एट एज ऑफ 11 व्हेन आई वाज इन. मैं एक छोटे शहर से हूँ, सो जब मैं क्लब सैंडविच बचपन में पहली बार सुना था तो मुझे लगा कि लोग नाइट क्लब में जाके सैंडविच खाते होंगे एंड दैट्स व्हाई दे कॉल इट क्लब सैंडविच. नहीं, बिकॉज इट्स प्रिपेयर्ड क्विकली, इट्स लाइक अ क्विक थिंग एंड लाइक अ क्विक बाइट. तो ज्यादा कुछ उसमें मैंने. एंड दिस वाज एट व्हाट एज? This was back when I was 11. यार 11 में तो हम ब्रेड पे जैम लगा के नहीं खा पाते थे, ये क्लब सैंडविच बना रहे हैं. नहीं, so I did took help from my mom. She helped me because मेरी माँ का एक उसूल था कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते एंड हमारे माँ बाप के हिसाब से हम कभी बड़े नहीं हो सकते, पर एक ऐसी एज पे जब हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं तो शी वाज लाइक कि एक हॉट प्लेट दे देती थी, उस पर तुम बनाओ while she is supervising me in the kitchen. कि मतलब टमाटर काट रहे हो, अपना हाथ नहीं काट लो. So she used to just do all the cuttings and choppings. I just used to assemble. So in a way, she used to be my helper. Or we say sous chefs. Sous chef, yeah, Sous chefs, of course. So yes. Sous chef का मुझे नहीं पता था. I think only in the TV show Friends there was a reference of a sous chef. So sous chef and all भी जितनी सारी आपकी ये classifications हैं, we're gonna talk all about that with the chef Ajai Sharma when we come back on Mirchi Mehman Mondays, ladies and Only on gentlemen. Radio Mirchi New York. It's hot. मिर्ची मेहमान, मिर्ची मेहमान, मेहमान, मिर्ची मेहमान. Knock knock. Who's this? Mirchi Mehman Mondays with me, Mirchi Shammi, ladies and gentlemen. इस week के मेहमान है Ajai Sharma, recent grad of the CIA, not the investigative agency, as I keep saying, Culinary Institute of America. So Ajay, welcome back to Mirchi USA. Thank you so much, Shami. Thank you. दोस्त मुझे ये बताओ कि जो शेफ्स की क्लासिफिकेशंस होती हैं, ये सू शेफ, मास्टर शेफ एंड मिशेलिन स्टार शेफ, ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे ये प्राप्त की जाती हैं? तो पहली चीज, मिशेलिन स्टार शेफ इज एन एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ अ रेस्टोरेंट जो मिशेलिन रेटेड है. अच्छा, वो रेटिंग चाहिए होती है. ओके. तो अब एक रेस्टोरेंट आपका मिशेलिन स्टार है और उसके आप एग्जीक्यूटिव द हेड शेफ हैं, तो आप मिशेलिन स्टार शेफ ही कहलाएंगे. अच्छा. कमिंग टू द मास्टर शेफ, मेरे हिसाब से मास्टर शेफ कोई नहीं है, बिकॉज वी आर इन द ट्रेड जहाँ पे हम वी लर्न एवरी डे. कोई भी यूज कर लेता है. हाँ, मतलब हम लोग रोज सीखते हैं. इवन इफ यू आर एट 85 यू आर अ शेफ. जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी अदाकाराज आती हैं, एक्ट्रेसेस, एंड एवरीबडी सेज आई एम अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस. तो हम लाइक अनलेस आपने गोल्डन ग्लोब, एमी या अकेडमी अवार्ड जीता है, यू नो व्हाट आई मीन. बट सो आप ऐसा बोल रहे हैं कि मास्टर शेफ ऐसा कोई भी यूज कर लेता है? मास्टर शेफ बेसिकली वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ फूड में हैज द मास्टरी एंड नो वन कैन डू बेटर देन हिम. लाइक फॉर एग्जांपल शेफ इम्तियाज कुरैशी, ही इज द फर्स्ट मास्टर शेफ टू इंट्रोड्यूस बिरयानी इन अ दम कुकिंग. अच्छा. सो आईटीसी में दिल्ली में बुखारा रेस्टोरेंट है जो इम्तियाज कुरैशी के नाम से चलता है. अच्छा. सो ही इज कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ बिरयानी मेकिंग. तो ये कहीं से सर्टिफिकेशन मिलता है या इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ? इट्स जस्ट द वर्ड ऑफ माउथ. गॉट इट. ओके ओके. यस. सो शेफ, सू शेफ इज द वन थर्ड इन कमांड. जैसे हमारे पुलिस में होता है, नेवी में होता है ब्रिगेडियर, जनरल एंड कर्नल. सो ऐसे ही हमारी जो किचन ब्रिगेड होती है, वी कॉल इट अ किचन ब्रिगेड. सो वी हैव एन एग्जीक्यूटिव शेफ, we have chef de cuisine who's like second in command, and then we have sous chefs. और sous chef क्या करते हैं? Sous chef वो जो दो फर्स्ट टू पोजीशन होती हैं, हेड शेफ और सेकंड हेड शेफ की, उनकी एब्सेंस में they look after the kitchen. So but they also prepare and they help the other cooks and the chefs in the kitchen. Understood. This is very interesting, ladies and gentlemen. We're gonna go back to back on this one more with my mehman Ajai Sharma when we Only come on back. Radio Mirchi New York. It's hot. मिर्ची मेहमान, मिर्ची मेहमान, मेहमान, मिर्ची मेहमान. Knock knock. Who's So Ajay, this? welcome back. We were talking about जो ये classifications होती हैं. ज़रा मुझे बताओ, because मुझे नहीं पता. Like I'm sure a lot of people when they go to a restaurant, they just know the restaurant, they know the food. So what's going on behind the scenes? Not the craziness part, but like what are the official rankings? क्योंकि एक institute में आप गए हो, पढ़े हो, तो explain to us how it works in the field now. Okay. So जब आप ये पूछते हो कि किचन में एक हेड शेफ के अलावा और कौन होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक किचन
सिर्फ एक हेड शेफ पे ही चलता है, तो देयर इज मल्टीपल रैंक्स विच आई विल हेल्प यू टू एंड योर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड. तो जैसे एक कंपनी में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही किचन में एक हेड शेफ होता है, एक शेफ द कुजीन होता है. तो ये दो जो बंदे होते हैं, ये देखते हैं कि रेस्टोरेंट में जो ऑपरेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं. तो उसी पे बताओ, हेड शेफ मेन्यू सेट करते हैं, हेड शेफ और शेफ द कुजीन जो दोनों मिलके करते हैं. हाँ, वो अच्छा. सब डिस्कस करते हैं, खाना बनाते हैं. दे डू द ट्रायल्स. हु डज मोस्ट ऑफ द कुकिंग? हेड शेफ. हेड शेफ एंड इट डिपेंड्स. इट्स समथिंग आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज हर रेस्टोरेंट में एक अलग सिनेरियो होता है कि हेड शेफ बोलता है अपने जूनियर को कि आप बनाओ एंड विल टेस्ट इट टुगेदर. तो जैसे कहीं बटर चिकन बन रहा है एंड उसमें a certain amount of tomatoes gonna go in कि यार ये थोड़ा ज़्यादा tomato ही है, it's a little spicy, it's not spicy enough, it's not tasteful enough. Who has the final say in that? Head chef or chef de cuisine? Head chef. Head chef does. Head chef. Okay. And can the chef de cuisine come up with a dish of their own or no? Yes. अच्छा. They are always free to do the trials. They can always say कि जैसे अमेरिका में डिफरेंट सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, ऑटम, फॉल. तो मैंने जहाँ अपनी ट्रेनिंग करी थी मिशेलिन स्टार में, ग्रामर्सी टैवर्न, वहाँ पे हर सीजन में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं. अच्छा, मेन्यू चेंज होता है. मेन्यू चेंज होता है. ओह, वंडरफुल. सो दे चेंज अकॉर्डिंग टू द वेदर. तो अभी जैसे स्प्रिंग सीजन है तो दे आर मोर गोइंग टुवर्ड्स द ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल. तो शेफ द कुजीन और पूरी जो टीम है, दे पुश कि हम ऐसा मेन्यू सेट करें जो हमारे हेड शेफ को पसंद आए. दे डू द हिट एंड ट्रायल्स. वो एक बारी में नहीं बैठता है. I see. There is multiple tasting. There is a whole discussion like a board meeting going on. और food से related TV shows के बारे में बात करेंगे when we come back on Mirchi Mehman with recent CIA graduate chef Ajai Only Sharma. on Radio Mirchi New York. It's hot. मिर्ची मेहमान, मिर्ची मेहमान, मेहमान, मिर्ची मेहमान. Knock knock. Who's this? Mirchi Mehman Mondays with me, Mirchi Shammi, ladies and gentlemen. आज के मिर्ची मेहमान हैं recent CIA Culinary Institute of America graduate अजय शर्मा. अजय सेलिब्रिटी शेफ्स की बात करते हैं दोस्त. बहुत सारे शेफ्स के नाम पे रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं और शेफ्स के नाम पे रेस्टोरेंट्स चल जाते हैं, जैसे मारियो बटाली, गॉर्डन रैमजी, संजीव कपूर. सो मुझे ये बताओ कि हाउ रियल इज दिस फिनोमेना, एंड बी अगर if chef Ajay becomes a brand, तो what does a restaurant owned / stamped by Ajay Sharma looks like? क्या रेस्टोरेंट होगा वो, क्या कॉन्सेप्ट होगा, किस जगह पे होगा, किस शहर में आप खोलना चाहेंगे, बताओ. So firstly I'll answer the question of being sold as a celebrity chef. जैसे आपने बताया मारियो बटाली, गॉर्डन रैमजी, तो इन लोगों ने ओवरनाइट सक्सेस तो ऑब्वियसली अचीव नहीं करी है. तो इन्होंने दे हैव वर्क थ्रू डिफरेंट शेफ्स इन देयर करियर एंड दे मेड श्योर कि जो हमने सीखा है हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस इंडस्ट्री. और बेसिकली सम पीपल दे क्लिक्ड कि हाँ गॉर्डन रैमजी नाम चल गया. हाँ, गॉर्डन रैमजी को आज की डेट में चाहे कोई कलनरी वाला बंदा हो, चाहे कोई पेस्ट्री वाला बंदा हो, चाहे एक लेमैन ही क्यों ना, गॉर्डन रैमजी को हर कोई जानता है क्योंकि उसके एक तो इतने रेस्टोरेंट्स हैं. हाँ. संजीव कपूर को इंडिया में हर कोई जानता है क्योंकि संजीव कपूर ने द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रिटी शेफ तब स्टार्ट करा जब हमारे इंडिया में डीडी से स्टार्ट किया था. हाँ, अर्ली 90s में, मतलब 25 साल तो मेरे को देखते हुए हो गए उसे. तो उसने तब स्टार्ट करा जब लोगों को शेफ का मतलब भी नहीं पता था. हाँ, है ना, मतलब लोगों को शेफ बोलना भी नहीं आता था. चीफ, शेफ, सो दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस द वर्ड. तो उन्होंने एक फेस दिया है उन सबको कि हाँ, संजीव कपूर को इंडिया की एक एक औरत जानती है, एक एक बच्चा जानता है. So that is fascinating. Like we all understand this concept of celebrity chef and कैसे celebrities के नाम पे खुल जाते हैं, रेस्टोरेंट चल जाते हैं. So अगर अजय शर्मा को somebody wants to throw a couple $3-4 million, is that enough to open a high-end restaurant? ठीक है, चलो $5 million for all the investors who are listening. ये बताओ कि chef अजय शर्मा, what is the concept? What does the name look like? किस शहर में आप खोलना चाहोगे, ये बताओ. तो अगर मेरे को आप पूछो कि कौन से शहर में रेस्टोरेंट खोलना चाहोगे तो ऑब्वियसली न्यूयॉर्क सिटी. इट्स लाइक द मेका ऑफ रेस्टोरेंट्स. Okay. What neighborhood?
Manhattan. Manhattan में किधर? Somewhere in Gramercy or the East Village. I love Gramercy. Okay, ठीक है. Or the Madison Square Garden. Yeah. Because that is the tourist attraction and restaurant तो चलते ही tourism पे. तो क्या concept होगा इसका? Your dream restaurant? My dream restaurant, I mean, अभी के लिए बता सकता हूँ कि एक इंडियन रेस्टोरेंट होगा बिकॉज फर्स्टली आई वांट टू रिप्रेजेंट माय ओन कंट्री. पर आप ये पूछोगे यार इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स. हाँ, तो मैनहट्टन में 50,000 रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें 20,000 इंडियन है. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? व्हाट इज द स्टैम्प ऑफ अजय शर्मा? शेफ अजय शर्मा looks like. That's what I need to know. So I would serve food which people can't even think of. जैसे लौकी का हलवा. None of the restaurant serves लौकी का हलवा. None of the restaurant serves आलू का हलवा. लोगों को जब मैंने यहाँ पे बोला कि गाजर का टू दी अमेरिकन आई एम सेइंग कि आई कैन मेक अ पुडिंग आउट ऑफ कैरेट, दे वर लाइक हाउ कैन यू मेक अ पुडिंग आउट ऑफ अ वेजिटेबल? आई एम लाइक वी आर इंडियंस, वी कैन डू वंडर्स. तो एक सिग्नेचर डिश जो आप अभी बताओ पर्टेनिंग टू चिकन, अजय शर्मा शेफ के किचन में चिकन की सबसे फैसिनेटिंग डिश कौन सी हो सकती है? फैसिनेटिंग डिश नहीं, पर हाँ द मोस्ट हम्बल एंड द सिंपल डिश वुड बी चिकन सुखा. चिकन सुखा बिकॉज द प्लेस वेयर आई स्टडीड, द टेम्पल टाउन ऑफ उडुपी, मणिपाल, वेलकम ग्रुप, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसने मेरे को एक चीज़ दिखाई कि थिंग्स चेंज इंडिया में. द थिंग इज there is a saying, 4 कोस पे वाणी बदले 8 कोस पे वाणी. Every 4 miles the language changes and every 8 miles the water and the food changes and so if you go in that belt, I went to that place, oh my god, I was so fascinated with that dish, chicken sukha, ghee, chicken and bedgi mirch. Bedgi is the native chilies of Karnataka. तो चिकन सुखा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? कुंदापुर. चिकन सूखा उसको कहा जाता है एंड कभी सूखा सूखा नहीं खाना उसको. हैव सम नाइस बियर विद इट बिकॉज़ इट पेयर्स रियली वेल. ऐसा कहा जाता है, यू नो, व्हेन यू गो टू दीस हाई एंड रेस्टोरेंट्स उस पे लिखा होता है पेयर्स वेल विद दिस. मैंने कहा हमको जो बियर हमारे पास है हम वो पियेंगे और जो खाना मिल रहा है वो खा लेंगे चुपचाप. सो वी आर नॉट टू पिकी ऑन दैट. मोर विद मिर्ची मेहमान व्हेन वी कम इन फाइनल सेगमेंट फॉर रेडियो मिर्ची. Radio Mirchi New York, it's hot. मिर्ची मेहमान, मिर्ची मेहमान, मेहमान मिर्ची मेहमान. Knock knock. Who's this? Mirchi Shammi, ladies and gentlemen. Mirchi Mehman chal raha hai. We are live here on the East Coast with CIA chef, Culinary Institute of America, recent graduate Ajay Sharma. Ajay, मुझे बात बताओ, ये जो रेस्टोरेंट्स के शोज वगैरह दिखाए जाते हैं जिसमें शेफ हमेशा चिल्ला रहा होता है What are you a goddamn idiot and what the F are you doing and that kind of stuff, ये वाकई में होता है पीछे रेस्टोरेंट्स में या नहीं? नहीं, ये तो आपको जैसे ऐसा चीखना चिल्लाना नहीं हो रहा होता? नहीं, कोई बर्तन नहीं फेंक रहा? नहीं, कोई नहीं बर्तन फेंकता, कोई बर्तन नहीं फेंकता. इट्स ऑल स्क्रिप्टेड. नहीं, बट वैसे एक्चुअल रेस्टोरेंट्स में जो तुमने काम किया, बिकॉज़ आई वर्कड एट रेस्टोरेंट्स एंड नॉट, यू नो, आई हैव जस्ट बीन फ्रंट ऑफ द हाउस बिकॉज़ यू नो आई एम सो प्रिटी दैट आई, यू नो, ऑलवेज वाज टेंडिंग बार और सर्विंग टेबल्स. बट मैं मजाक में कह रहा हूँ, बट पीछे हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है. इवन आई नो दैट, बट इतना सिवियर नहीं होता जितना टीवी पे दिखाते हैं. नहीं, इतना सिवियर नहीं होता क्योंकि जो टीवी पे होता है वो बेसिकली स्क्रिप्टेड ही होता है. पर इन रियल लाइफ, रियल टाइम किचन ऐसा कुछ नहीं होता है. पर हाँ, केओस हो सकता है कि जब आपके रेस्टोरेंट में 300 लोग आके बैठे हैं और फिर इट्स अ फ्राइडे रश आवर इन न्यूयॉर्क सिटी, थिंग्स आर रोलिंग, तो मतलब उसमें एक्चुअल केओस हो कैसे सकता है? केओस ऐसे हो सकता है कि जो आपकी टिकट्स आ रही हैं, आपने जैसे बोला कि आप फ्रंट ऑफ द हाउस में थे तो आप एक चीज देखते थे, टिकट्स आ रही हैं, मशीन बज रही है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास सिर्फ 7 मिनट्स होते हैं एक एपेटाइजर को बाहर भेजने के लिए. तो आप ये सोचिए कि 7 मिनट्स में एक बंदे के ऊपर कितना प्रेशर होता है फ्रॉम 0 to 100 पहुंचने में. इट्स लाइक यू आर मेकिंग अ लैम्बोर्गिनी पेसिंग अप एट 100 miles per hour in 45 seconds. तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, पर दैट्स द आर्ट बिकॉज यू आर सर्विंग 300 people and for 300 people every person there is a 7 minute पर टेबल. अगर हम दोनों एक जगह बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरा खाना आ जाए और आप बस मेरा मुंह देख के तो द कोऑर्डिनेशन. ऐसा इस दफ्तर में रोज होता है, बाहर से खाना मंगा लेते हैं, मैं मुंह देखता रहता हूँ. कंटिन्यू. पर एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दैट कैन कॉज द रेपुटेशन ऑफ द रेस्टोरेंट. इट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग. तो पीछे कोई नहीं चिल्लाता कि यार तू क्या कर रहा है, तुझे ये रखने को बोला था, मैरिनेट नहीं किया तूने, ये चिकन पूरा नहीं है, ऐसा आपस में आप लोग नहीं वो होता है पर वो उतना इंटेंस नहीं होता बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम. एक रिस्पेक्ट किचन की बनानी चाहिए, मतलब क्योंकि अगर
पीछे किचन में चिल्लाने लगेंगे तो जो लोग अंदर बैठे हैं they'll get scared. अरे ऐसा होता है एंड द फनीएस्ट पार्ट इज जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, इंडियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी, सोल फूड, व्हाटएवर इट इज, जब पीछे शेफ लड़ रहे होते हैं, दैट्स अ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, बट जब पीछे शेफ दूसरी भाषा में लड़ रहे होते हैं तो समझ नहीं आता कि भाई होने क्या वाला है. सो आई वर्कड एट अ Mexican restaurant in East Village, and obviously the chefs were Mexicans, and most people who came to eat there didn't speak Spanish, and a lot of Indians used to come there because this was a very vegan friendly restaurant. अब पीछे वो Spanish में चिल्ला रहे so it was a little confusing for people and scary भी, क्या ये खाना दे भी रहे हैं कि नहीं, नहीं. अब हर लोगों का बोलने का स्टाइल अलग होता है. मतलब एक टेम्पो होता है. Mexicans are loud, Indians are loud. Indians are not loud. उतने loud नहीं है जितने Mexicans या आप. You didn't grow up in my family, brother. Okay. I mean it depends. My family is not that loud in that sense. पर एक होता है कि आप बोल कैसे रहे हो. अभी लोगों को अगर वो बोलेगा भी तो बोलेगा वो बहुत आराम से, पर उसकी जो पिच ऑफ द साउंड होगी वो इतनी हाई साउंड करेगी कि वो लगेगा कि जैसे डांट रहा है. तो पर वो वैसा कुछ नहीं होता है. कि बस ये होता है कि एक शेफ को, एक हेड शेफ को ये चाहिए कि भैया खाना आराम से बाहर पहुंच जाए विदाउट एनी फस. और बाद में लड़ लो जब रेस्टोरेंट बंद होने के बाद. Wonderful. More with Mirchi Mehman when we come back, ladies and gentlemen. I'm loving this. Only on Radio Mirchi New York. It's hot. Mirchi Mehman. Mirchi Mehman. Mehman. Mirchi Mehman. Knock knock. Who's Mirchi this? Mehman Monday with me, Mirchi Shammi, ladies and gentlemen. मेरे guest, CIA Culinary Institute of America, one of the most prestigious institutes in America and the world, arguably, right, Ajay? Yes. Back on Radio Mirchi USA. तो अजय मुझे एक बात बताओ, शेफ होना, रसोइया, बावर्ची, which is your Instagram handle by the way, काफी लुक डाउन किया जाता था पहले इस प्रोफेशन को, इस इंडस्ट्री को. तो आपको क्या encouragement, आपको कहाँ से इतना जोश और जुनून आया कि आपको ये परस्यू करना है? And more importantly, now that you have worked in New York City, now that you have graduated from one of the most prestigious institute, आप क्या बताना चाहेंगे आने वाले young लड़के लड़कियों को कि भाई what to fear, what not to fear, should they even fear this? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने जैसा पूछा कि मैंने क्या ऐसा सोचा कि आई वॉन्ट टू बी अ शेफ. बीइंग अ शेफ इज अ रियली आउट एंड आउट प्रोफेशन. लोग जाते नहीं है, लोग कहते हैं कि जो पढ़ते नहीं है वो खाना बनाते हैं. पर लोग क्या कहेंगे हैज डिस्ट्रॉयड मोर ड्रीम्स देन लोग क्या खाएंगे हैज मेड मोर ड्रीम्स. तो मैं यही कहूँगा कि मतलब आने वाली जो जनरेशन है हु लुक्स अप टू दीज सेलिब्रिटी शेफ्स, मैं यही कहूँगा कि nothing comes easy in life. You really have to work hard. You really have to pay your dues and be committed. Just the way you are committed to anything in this world. आपको एक passion होना चाहिए for food. And ये तो आप भूल ही जाओ कि आपकी कोई सोशल लाइफ होने वाली है. So first thing first, you need to sacrifice your social life. क्योंकि you're working late. You are serving the other people late night, 12 in the night. वक्त नहीं है. काम करके आप सबवे लेके घर जा रहे हो. You smell like food. No girl wants to talk to you. Exactly. And you are dead by the time you reach your home. So first thing first is you need to learn sacrifices of your family, of not like entirely, but yes, आपको एक priority देनी पड़ेगी किचन को. So pursue it as a real career. Yes. So basically, डरने की तो कोई बात नहीं. It's a very good thing. It's really in demand job right now. हम बेसिकली इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स से ज्यादा बना रहे हैं आज के डेट में. क्या बात है. और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, राइट? द हैप्पीनेस दैट यू फील आफ्टर somebody कोई बहुत कुख्यात आदमी आपके रेस्टोरेंट में आते हैं, they call you, hey, I want to meet the chef, and they say, like Bill Clinton famously, a lot of Harlem restaurants, he's like, I want to meet the chef, I want to tell them कि what amazing job you did. So that's gotta feel rewarding, right? Exactly. I mean, आपको कोई भी आके अप्रिशिएट करे कि नॉट जस्ट फूड, आपको वैसे भी कोई आके आपको अप्रिशिएट करे कि यार आई लाइक योर वर्क, एंड वो मन से अच्छा लगता है. स्पेशली फूड फ्रॉम एवरीवन, आई वुड से इट कनेक्ट पीपल, इट बिल्ड्स अप द कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड. आपको बंदा याद नहीं रहेगा पर आपको उस खाने का टेस्ट याद रहेगा जो अरे क्या बात है, क्या बात है. On that note, ladies and gentlemen, Ajai Sharma, my friend, chef from the Culinary Institute of America. Ajay, people are going to follow you on Instagram. They're going to keep tabs on कि आप कहाँ जा रहे हो. Without naming any names, give us your Instagram. It's Baawarchiii. It's Baawarchii. Follow that on Instagram, ladies and gentlemen. And that was Mirchi Mehman. Sham Shandar Live continues in the next hour. आप लोग सुन रहे हैं Radio Mirchi USA. Only on Radio Mirchi New York. It's hot.